pointer is that AJK have won the toss and they have opted to bat first. Najibullah has been very impressive. Bowled really well in the game day before yesterday. Before he was taken out after just bowling 2 overs. But batting first, Azad Jammu Kashmir captain was very comfortable, very confident. Right, Hassan Mahmood, the umpire, says, let's begin. Up and over, the very first delivery. A boundary to start off for Hassan and Azad Jammu Kashmir. Capabilities and my own vulnerabilities. And once you know that, you're in a great position to make decisions. And this is out. This is swinging in, hitting the stumps. No problem for the umpire. 6 for AJK on the board, and they lose their first wicket. Yeah, lots of things to think about. He was just showing him the bat also. That's not the case. Maybe while going down, that would have been the case, but not to be. You can't do anything now. You'll have to walk back. Isnan Nadeem scoring 1 run. It's 6 for 1. It's a great game of cricket that has been through the gap for 4. Yes, it will. It does. Shabir is up and running with a boundary. He's been very good. Follow the ball, which is not ideal for an opening batter. This is now ball into his zone, and he's just lifted one beautifully. And is it a 1 bounce for? Yes, it is. So this is a good stroke. Using the length, he went away from the stumps. Ahead in this game at the moment. This one is pulled and pulled handsomely for 4. अच्छा गेंद डिफ्लेक्ट किया इसको. लेग गार्ड्स के ऊपर था खलील का, जिसका फायदा उठाया शामिर ने. ये बेहतर स्ट्रोक है. इसको ऑफ साइड पर खेला है. 4 रन होंगे. ये वो सलीका है या तरीका है कि आप गेंद को अपनी कलाई का इस्तेमाल करते हुए बल्ले के साथ गाइड करते हैं. बकिया काम जो है, थर्ड मैन बाउंड्री पर गेंद को हासिल किया. इस बार गेंद को ऊंचा खेला है और काफी जोरदार तरीके से खेला है. ये छक्का. ऐसा बार बार दोहराना होगा शामिर को. बहुत ही शानदार टाइमिंग. फील्डर को थोड़ी ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी. एफर्ट अच्छी थी लेकिन 4 रन रोक नहीं पाए शामिर. इसीलिए अहम है एजेके के लिए. सलाउद्दीन पे कुछ ना कुछ प्रेशर जरूर होगा. लीजिए जनाब, ऊंचा स्ट्रोक खेला है ऑन साइड पर. गेंद काफी देर हवा में रहने के बाद गई है पीछे 6 रन के लिए. तो ये जैसे ही गेंद बल्ले से निकला, Go up and down with. This is gone for 6. Up and over the dugout. That is once again great use of the length and the pace available. बार भी बहुत अच्छा ग्राउंड दिया गया इनको. तो अभी काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटी दी गई हैं और वहाँ पर जो है नदीम, जहाँ पर है हमारे जो हेड कोच साहब हैं नदीम अफजल साहब, ये उनको काफ़ी मेहनत करवा रहे हैं. 1 साल में लास्ट ईयर रिजल्ट भी इनका बहुत अच्छा आया 4 डे में, जो कि ये अगर लाहौर के साथ इनका मैच टाई नहीं होता तो ये क्वालिफाई कर जाते 4 डे में. अभी काफ़ी नीड है इन प्लेयर्स को फिटनेस लेवल पे काम करने की. तो इंशाल्लाह ताला कर रहे हैं. ट्रेनर भी काम कर रहे हैं. अभी तो जो फैसिलिटीज़ इनको दी गई हैं, इनमें से मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट ईयर ये टीम इस सीज़न से भी अच्छा परफॉर्म करेगी. The other person is just running slowly. And this is what happens. He lost his cool due to that lack of communication. The concentration lapse comes in and he opts to play a poor stroke and loses his wicket. And now it's further trouble for the AJK. Yeah, that's disappointing end to a good inning. He was looking so good, so authoritative until he does this. Just a heave, just a swing.
loses his balance, loses his wicket. Hasnain Shamir played beautifully for his 59. It's 102 for 4. परफॉर्म कर रहे हैं, कदमों का इस्तेमाल एक मरतबा फिर, लेकिन अच्छा कनेक्शन नहीं था, लेकिन बॉल किसी भी तरह बाउंड्री के पार। जी हाँ, हिट आउट तो किया है, क्या क्लियर पार कर पाएंगे कि नहीं? और जी हाँ, क्लियर कर दिया लॉन्ग ऑन को 6 रन्स के लिए। फ्लाइटेड डिलीवरी थी एक बार फिर, इस पर थोड़ा सा आगे गिरा हुआ गेंद है, लेकिन फर्क कोई नहीं पड़ेगा। एक और मैक्सिमम। अटैक जारी है साथ की जानिब से, एक और चौका, इस मरतबा बैकवर्ड पॉइंट की जानिब। वाइड यॉर्कर की तरफ जाया जा सकता है इस मरतबा, लेकिन खड़ा खड़ा कनेक्ट नहीं किया, अगर पाए खड़ा कर दिया हवा में और आउट। गेंद को थोड़ा बाहर पुश किया, ऑफ स्टंप के काफी बाहर था, उसकी तरफ जा नहीं पाए। नसीबुल्लाह ने कैच अपना पूरा मुकम्मल किया और ये बड़ी विकेट है, क्योंकि साथ जिस तरीके से हिटिंग कर रहे थे, लग रहा था कि गेम जो है वो कोयटा से दूर लेके जा रहे हैं। खुद भी जानते हैं जैसी शॉट खेली कि अच्छा कनेक्शन नहीं था। इंटेंशन अच्छी थी, प्लान अच्छा था, क्योंकि मिड ऑफ सर्कल में मौजूद था। साथ आसिफ शानदार इनिंग 27 रन की। अच्छा गेंद, यॉर्कर थोड़ा सा टेल इन हुआ और अपनी कामयाबी हासिल कर ली इन्होंने। पहली कामयाबी मैच की। आकिब के पास कोई जवाब नहीं था इस शानदार यॉर्कर का। यहाँ बेहतरीन इंतखाब नजीबुल्लाह का, दाद देनी होगी। ओह, क्या कर दिया नजीब। नो बॉल, आई एम श्योर कि ये नो बॉल है, यकीनी तौर पर इस वक्त। जी हाँ, अंपायर की तरफ कैमरा आ चुका है, अंपायर ने डिसीजन ले लिया गया है। यहाँ पर विकेट हासिल की नजीब ने पहली ही बॉल पर, लेकिन ओवर स्टेप कर गए। एक मरतबा फिर गलती दोहरा दी। यहाँ से बिल्कुल जो पिच है वो लाइन के ऊपर हुआ है, हल्का सा जो आपका पाँव है वो पॉपिंग क्रीज से पहले ही आना चाहिए। नजीबुल्लाह पहले भी ये गलती कर बैठे, शामिर को आउट किया था, वो भी नो बॉल डिक्लेयर हुई थी। और अब जिस टाइम लैंडिंग होती है फुट की, उस टाइम पे आपके जो पाव या हील का कुछ हिस्सा है वो लाइन से पीछे होना ज़रूरी है, और यहाँ पे फुट लैंड हो रहा है। आज काफ़ी बिजी रखा है राशिद रियाज, जो कि टीवी एम्पायर है, उनको। इम्तियाज़ इकबाल, आई एम सॉरी। नजीबुल्लाह, काफ़ी क्लोज मामला है, लेकिन यहाँ पे लैंडिंग जब हो रही है तब देखना ज़रूरी है कि कुछ हिस्सा लाइन से पीछे है या नहीं। काफ़ी दबाव में इस वक्त डाल दिया है थर्ड अंपायर को, क्योंकि काफ़ी क्लोज है। यहाँ से अगर हम देख रहे हैं तो काफ़ी क्लोज है। पूरा अपना टाइम लेते हुए थर्ड अंपायर बदल बदल के एंगल देखा, अब जूम करके देख रहे हैं कि कुछ जो है हील का कुछ हिस्सा लाइन से पहले जो है वो लैंड होना चाहिए, उस सूरत में लीगल बॉल होगा। और अगर ऑन द लाइन भी उनका फुट लैंड हुआ है तो फिर नो बॉल होगा। इंतजार, और आउट करार दे दिया यहाँ पर। अंपायर ने अपना टाइम लिया, लेकिन आखिर में जाना होगा पवेलियन की तरफ। आकिब को पहली ही बॉल जिस पर उनको लेग बिफोर आउट करार दिया अंपायर ने। आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर 145 पर 6। अच्छी शॉट की ट्राई, लेकिन बहुत ही शानदार कैच। प्रिडिक्टेबल थे नजीबुल्लाह, थोड़ी सी इनोवेशन की कोशिश की अरसलान ने। अब्दुल वाहिद बंगलजई, सेफ पेयर ऑफ हैंड्स, ये बहुत ही शानदार फील्डर हैं। अच्छा कैच यहाँ पे इन्होंने करके दिखाया, और थोड़ी एक्सेलरेशन लेना चाह रहे थे अरसलान, लेकिन गवा बैठे अपनी विकेट। इस मरतबा काफ़ी क्लियर है मामला। अगेन यॉर्कर, बहुत ही शानदार डाइविंग कैच।
फाइन लेग को क्लियर करना चाहते थे, लेकिन पूरी तरह से बैट पर आया नहीं बॉल और जाना होगा अपने डगआउट में वापस। अरसलान को 18 रन बनाने के बाद और मैच की शानदार यॉर्कर। फिर से आसान नहीं होता फास्ट बॉलर्स के लिए 6 के 6 यॉर्कर्स को परफेक्शन में कन्वर्ट करना, लेकिन नजीबुल्लाह को यहाँ दाद देनी पड़ेगी। 2 विकेटें उन्होंने हासिल की और एजे के 149 150 का टारगेट देना चाह रहे थे, लेकिन वहां तक पहुंच नहीं पाए। ये कैलकुलेशन की दाद देनी होगी। टॉस के टाइम जो उन्होंने कहा था कि 150 को वो देख रहे हैं, तो 150 ही रन उन्होंने सेट किए हैं बोर्ड के ऊपर, तो कैलकुलेशन तो उनकी 100% दुरुस्त थी। जल्लाद खान इस वक्त मुतमईन दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि बड़ा टोटल तो नहीं है, एक एवरेज टोटल है T20 के हवाले से। 150 हैं, 160 रन्स होते हैं, तो इसको एक एवरेज टोटल कंसिडर किया जाता है। बड़ा टारगेट नहीं है, लेकिन फिर भी बैटिंग अच्छी करनी होगी एक मरतबा फिर बिस्मिल्लाह खान को मैच को जीतने के लिए। इनको हम गेंद के साथ भी जिम्मेदारियां निभाते हुए देखेंगे। ये सूरत हाल रही एजेके की। टॉस जीत के पहले बैटिंग का फैसला किया था, टॉप ऑर्डर नहीं चल पाया, लेकिन शामिर जिनकी वापसी हुई इस प्लेइंग 11 में, उन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा किया। 59 रन उन्होंने खेल बनाए। उसके बाद अवैस और अरसलान की अच्छी पार्टनरशिप थी, लेकिन जैसे ही वो पार्टनरशिप टूटी थोड़ा सा एजेके के लिए परेशानी का बायस बनी ज़रूर, लेकिन साथ की शानदार 27 रन 10 गेंदों के सामना करके थोड़ा सा मोमेंटम वापस जो है एजेके के पास आया और 150 रन जो उन्होंने तय किए थे वो ही टोटल सेट किया। एक नज़र बॉलिंग कार्ड पर भी आगाज़ बहुत शानदार था। खलील ने 3 विकेट्स हासिल की, नजीब ने 2 विकेट्स हासिल की और एक विकेट जल्लाद और इब्राहिम के हाथ लगी। आगाज़ अच्छा था, लेकिन सेंटर में हमने देखा है कि एक आध पार्टनरशिप लगी, तीसरी विकेट की थी और आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर ने बनाए 149 रन 7 विकेट्स के नुकसान पर।